هذا النساء؟ قال نعم أذنت لك فداخلت معها. قال فاطمة فلما اقترب الناس فحفتهم الملائكة رسول الله. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة أيما سكنا قبلنا هذا في محفل من محافل أهل وفيه جمع من شيعتنا وفيه مهموم إلا شیطان کا سایہ تھا نے جلایا تھا درفا. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. بہت بہت شکریہ کھیرادی صاحب. میں مصطفیٰ علی خان سے ادائے فاطمیہ مسجد نواب منت صاحب محلہ قلعہ نانپارہ بہرائچ اتر پردیش انڈیا. 2022 کا پروگرام اسٹارٹ ہو رہا ہے اور خمسائے مجالس کا. اسی سلسلے میں جو ہمارے مومن نانپارہ کی جانب سے یہ جو پروگرام ہیلڈ کیا جاتا ہے، اور ذیشان صاحب ہمارے ساتھ اس سمے موجود ہیں اور وہ یہاں کا اتہاس بتائیں گے. یہاں کا جو پروگرام ادائے فاطمیہ کا جو یہ پروگرام ہے قریب 28 سال سے ہو رہا ہے. اس کے بارے میں کچھ اتہاس بتائیں گے ذیشان صاحب. السلام علیکم. یہ پروگرام جو ہے پچھلے 27 سالوں سے مسلسل ہوتا چلا آ رہا ہے، جو کہ 1994 یا 95 سے اسٹارٹ ہوا تھا، اور تب سے مسلسل ہر سال جو ہے اسی شان و شوکت سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ ہوتا بھی آئے گا. بہت بہت شکریہ ذیشان صاحب. تو یہاں پہ یہ جو خمسائے مجلس کا جو یہ سلسلہ ہے کب سے شروع ہوا ہے؟ ہمسائے مجالس 7 سال سے ہو رہا ہے، لگ بھگ 7 سالوں سے. اس سے پہلے ایک دن کا پروگرام ہوتا تھا، پھر اس کے بعد سے پھر یہ پروگرام 2 دن کا ہوا، پھر اس کے بعد سے یہ 5 دن کا ہونے لگا، تب سے پھر یہ 5 دن کا ہوتا ہے. اچھا، اگر میں غور کروں تو اگر اتہاس میں جاؤں، ماضی میں جاؤں، تو ہندوستان میں میرے خیال سے سب سے اولڈ اگر جو یہ پروگرام ایام فاطمیہ کا ہے تو یہ شاید یہاں نانپارہ کہیں ہوگا. ہاں، اس ٹائم پہ کہیں نہیں ہوتا تھا، اور یا بہت مختصر سا ہوتا تھا. کہیں پر مجلسیں ہوتی تھیں، خواتینوں میں مجلسیں ہوتی تھیں ایک دن کے لیے. باقی اس طرح سے پروگرام اس شان و شوکت سے نہیں ہوتے تھے جو اب ہو رہے ہیں. اور لیکن جب یہاں پر ہوا تھا، اسٹارٹنگ ہوئی تھی، تو اس ٹائم کہیں نہیں ہوتا تھا. تو مومنین نانپارہ نے یہاں پہ کافی زیادہ حصہ لیا، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے سب. آپ ہاں، کافی سبھی لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اس میں، اور ہمیشہ سب کی اس سے محنتوں سے اور سب کی مشقتوں سے اور سب کے تعاون سے یہ پروگرام ہوتا چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا آئے گا. بہت بہت شکریہ ذیشان صاحب آپ کا. میں مصطفیٰ خان، میں اب جاننا چاہتا ہوں رضی صاحب سے بھی، جو میں یوتھ ہیں اور یہاں پہ انجمن عباسیہ کے وہ بھی ہیں، نوا خان بھی ہیں. آپ کچھ بتائیں ایام فاطمیہ کے بارے میں. جی ماشاءاللہ، پروگرام بہت اچھا ہو رہا ہے، اور بہت پہلے سے مطلب سارے
जितने मोमिनीन हैं सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सब माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और जितने हमारे जो भाई लोग हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, अपने टाइम देते हैं, अपनी मेहनत देते हैं, माशाल्लाह बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और आप वहाँ छुट के चले आए। तो हजरत आप लोगों ने सभी ने यहाँ पे देखा कि ज़ीशान साहब ने और ये बताया यहाँ पे कि मोमिनीन ननपारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है मोमिनीन ननपारा ने इस प्रोग्राम को। और उन्होंने बताया, और जहाँ तक मैंने भी देखा, मैं भी यहाँ का बाशिंदा हूँ और मैंने यहाँ देखा करीब 26-27 सालों से ये प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ का जो प्रोग्राम के बानी मौलाना आगा मेहंदी साहब किबला, उन्होंने इस जन्नतुल बकी की तामीर करवाई थी। ये देखिए यहाँ पे पहले बाग हुआ करते थे जो उन्होंने यहाँ पे करवाए और आज माशाल्लाह यहाँ जन्नतुल बकी है। और करीब 26-27 सालों से यहाँ जन्नतुल बकी का प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा है और हमारे ख्याल से कि हिंदुस्तान में सबसे पुराना प्रोग्राम यहाँ पे है। बड़े दानिश्वर हजरात, उलमा हजरात और बड़े मुफक्किरीन हजरात इस सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं और ये सरजमीन अपने ज़िले की मोहताज नहीं है कि साहब बहुत सारी बस्तियां हैं कि उनका तारुफ उनके ज़िले के ज़रिए होता है, लेकिन कुछ बस्तियां ऐसी हैं इल्म अदब का गहवारा कहलाती हैं, उसकी वजह से वो बस्तियां अपने ज़िले की मोहताज नहीं है। उन्हीं में एक बस्ती है ये नानपारा, ये खुद शियों में इतनी मशहूर है कि यहाँ पर ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसका ज़िला बहराइच है। ये खुद एक नानपारा एक बहुत बड़ा नाम है, खुद एक इसकी एक शनाख्त है, इसकी एक पहचान है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था अज़ीज़ान गिरामी, मेरे साथ मेरे कलीम भाई और फैज़ी साहब। मैं कलीम भाई से जानना चाहता हूँ कि ये जन्नतुल बकी का जो प्रोग्राम है ये कितने साल पुराना है कलीम भाई? सलामुअलैकुम। ये कम से कम 25-26 साल पुराना है और यहाँ पे मैदान हुआ करता था। इसकी मतलब जन्नतुल बकी का जब से प्रोग्राम चालू हुआ है मौलाना आगा मेहंदी साहब की ये देन है। अच्छा। जब से इसको जो है प्रोग्राम को आगा मेहंदी साहब के जी आगा मेहंदी साहब और नवाब राशिद साहब, वो हम लोग ने मिलके इसको जो है बड़े उससे इस मकाम पे पहुँचाया। अच्छा, तो कलीम भाई ये जो तकरीबन कितने साल पुराना जो प्रोग्राम है ये समथिंग अरे जो है 26-27 साल पुराना है माशाल्लाह। अगर हिंदुस्तान में तो इससे पहले जो अयाम फातिमिया हो रहा है क्या उस वक्त तो नहीं होता होगा? नहीं, पहले यहीं अरे होता था, अब तो पूरे यूपी में अरे हो रहा है अयाम फातिमिया का प्रोग्राम। पूरे यूपी पूरे हिंदुस्तान में बाकायदा सब हो रहा है, अयाम फातिमिया का जो प्रोग्राम हो रहा है। और कुछ कहना चाहते हैं कलीम भाई आप? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। फैदी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए फैदी भाई, ये यहाँ पे आपने पूरे इलेक्ट्रिक का सब पूरा इंतजाम किया, पूरा आप जो देखते हैं, मतलब आप अयाम फातिमिया के बारे में क्या बताना चाहते हैं? जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये 26 से 27 साल पुराना ये प्रोग्राम है। हम लोग पहले यहाँ पर पूरी रात यहाँ पर काम हुआ करता था। अभी इससे पहले भी आपने देखा होगा कि 3 बजे रात तक के काम चला, उसके बाद में दूसरे दिन भी काम चला, फिर आज भी आपने देखा होगा। इसी तरीके से ये हर साल इसी तरीके से काम होता है और इतनी अच्छी तरीके से होता है। मोमिनीन नानपारा मतलब इस प्रोग्राम की बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और बिल्कुल हर तरीके से दामे दरमे सुखने हर तरीके से पूरी आवाम यहाँ पर अपना अपना जो भी हिस्सा होता है वो लेती हुई आ रही है और लेती रहेगी हमेशा की तरीके से। लाइटिंग है, टेंट है, सब पूरा इंतज़ाम हो रखा है। अंजुमन है अपनी, सब पूरा काम कर रही है। और राशिद भाई हमारे सदर साहब हैं और डॉक्टर राशिद साहब सेक्रेटरी साहब हैं और बाकी लड़के हैं अपनी पूरी अंजुमन के। तो ये सब पूरा ही काम पूरी लगन से करते हैं। पूरी आपकी आवाम ननपारा की आवाम जो है, ननपारा के मोमिनीन, ये सब छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए ये लड़के खड़े हुए हैं, ये सब सुबह से काम कर रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ में हैं। हम भी यहीं थे, अभी तक मैं घर नहीं गया हूँ, सुबह से मैं ये लगा हुआ हूँ और बिल्कुल इंतज़ाम बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पे कोई चीज़ की कमी भी नहीं है अभी तक के आई। बहुत बहुत शुक्रिया फैदी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। और जनाब अदाए फातिमिया का प्रोग्राम 2022 आपको 6, 7, 8, 9, 10 खमसाए जो कि मजलिस हर रोज़ अलग अलग मौलाना आ रहे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, खिताब फरमाएंगे। और ऐसे ही भी शहज़ादी का गम ऐसे ही जो चलता है और हम लोग मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मेरे साथ है इमाम जुमा और जमात नानपारा मौलाना मोहम्मद हैदर साहब किबला। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अयाम फातिमिया का जो यहाँ पे एक, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अयाम फातिमिया ये बहुत ज़माने से होती चली आ रही है और इसमें मोमिनीन का ताउन भी रहता है। 2 साल से अयाम फातिमिया को 5 दिन की शक्ल में, खमसे की शक्ल में मनाया जाता है और मोमिनीन इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं
और बहुत ही शान से शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा का गम मनाया जाता है। और मैं 2009 से ये देखता चला आ रहा हूँ, इससे पहले से यहाँ पे अय्याम फ़ातिमा मनाया जाता था, मगर इस तरह से नहीं मनाया जाता जिस तरह से 2 साल से मनाया जा रहा है। अमोनी इसमें ताउन करते हैं और सब लोग खुलूस के साथ शहज़ादी का गम मनाते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये थे हमारे इमाम जुमा जमात मौलाना मोहम्मद हिदायत साहब किबला। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।